बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 22 यानी विंटर 2022 का पास पेपर। हमने ओवरव्यू की डिस्कशन की, यानी पेपर का एक ओवरव्यू लिया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि हमने ओवरव्यू के दौरान ये डिस्कस किया कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज़ अबाउट M&A, mergers and acquisition, और उसमें there is significant discussion component. Computational part is relatively easier और discussion part है वो भी आसान है, but the discussion part is significant in this question. तो हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं and then we'll attempt it together. NPP Limited is a company that manufactures artificial chemical fertilizers that are used in the farming industry in Pakistan. The company is listed on the Pakistan Stock Exchange. It's a listed entity, NPP. NPP operates from 3 factories based in Lahore. There are 2 factories dedicated to the production of 2 intermediate compounds, ammonia and nitric acid, and a 3rd factory that produces the final fertilizer products such as nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, ammonium nitrate and nitrophosphate. तो उसके बाद फिर आप फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 2 फैक्ट्रीज आपकी इंग्रेडिएंट्स जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स में आएंगे उन्हें बनाती हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाती हैं, और फिर एक फैक्ट्री आपकी फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। Recently, NPP has struggled to produce sufficient volumes of ammonia to satisfy the internal requirements for final product production. A number of alternative solutions to the supply chain shortage have been considered, and one option is to acquire a company that manufactures ammonia. अच्छा, अब आपके पास अमोनिया जो कि एक इंग्रेडिएंट है इम्पॉर्टेंट फाइनल प्रोडक्ट का, आप उस सफिशिएंट वॉल्यूम में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे ड्यू टू कैपेसिटी लिमिटेशन, जिसकी वजह से नेचुरली आप फाइनल प्रोडक्ट्स की उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जितनी डिमांड है। आपने मल्टीपल सॉल्यूशंस इस सप्लाई चेन को शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए देखें, और एक आपके पास ऑप्शन क्या है, इज टू एक्वायर अ कंपनी जो कि अमोनिया मैन्युफैक्चर कर रही है, आप उसको एक्वायर ही कर लें। दिस इज़ लाइक बैक एंड इंटीग्रेशन। बेसिकली इंटीग्रेशन क्या करें, आपके पास वैसे भी एक अमोनिया की फैक्ट्री है, आप एक और फैक्ट्री लेके अपनी उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंटरनली इन्हांस करेंगे। NPP has identified a smaller listed target company, NH Agrico Limited. NH, which is also based in Lahore, manufactures ammonia and other compounds used in the production of fertilizer. The production director, Ali Hussain, has estimated that in addition to resolving the supply chain shortage, जो कि आपका मेजर कंसर्न है, जिससे आपको बेनिफिट होगा, the acquisition would generate synergies of rupees 1500 million per year. आपको synergies भी मिलेंगी 1500 million की per year based on this acquisition. NPP is confident that its price to earning ratio is suitable to value the combined business and would like to make an offer to the shareholders on that basis. Now underline this. This is the basis of valuing the combined entity. NPP क्या कह रही है, वो confident है कि जो उसका PE ratio है, यानी जो acquirer, NPP is the acquirer now and NH is the target entity. NPP is confident that its price to earning ratio is suitable to value the combined business and would like to make an offer to the shareholders on that basis. To protect the current shareholders, NPP would like to structure the deal in such a way that the earnings per share and PE ratio of the new combined NPP group would remain the same as that of the existing EPS and PE ratio of NPP. अब NPP ये क्या चाह रही है, to protect the current shareholders, NPP would like to structure the deal in such a way कि earnings per share और आपका जो PE ratio है वो सेम रहे जो कि existing EPS and PE ratio of NPP है। ये वही बात है जो ऊपर हो गई कि अगर आपका PE ratio सेम रहेगा तो आपके शेयर होल्डर्स की जो वैल्यूएशन है वो ख़राब नहीं होगी अपने एग्जिस्टिंग की। ये आप सोच रहे हैं। Initial discussion suggests that the board of NH is open to the idea of a takeover if the offer price is acceptable and in the form of a share for share exchange for NPP shares. NH जो टारगेट कंपनी है, जब आपने उससे ये बात की है, इनिशियल डिस्कशंस की है, तो उनका बोर्ड ओपन है with the idea to the idea of the takeover अगर उनके लिए प्राइस एक्सेप्टेबल होगी, और वो शेयर एक्सचेंज की फॉर्म में एक्सेप्टेबल है कि NPP हमें अपने शेयर्स दे दे और हमारे NH के शेयर्स एक्वायर कर ले। यानी
the deal is going to be in the form of a share exchange. Relevant financial information क्या है? NPP, EPS 460, NH 620, number of shares 22 million, 5 million, PE ratio 10 और 5. अच्छा, अब आइए required. Explain the meanings of synergy and suggest what might create synergies for NPP if the takeover of NH were to proceed. If the takeover of NH were to proceed, तो आप बताएं, पहले तो ये बताएं, ये डिस्कशन पार्ट है. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिनर्जी, सिनर्जी किसे कहते हैं, और बताइए व्हाट सिनर्जीज फॉर एनपीपी होंगी इफ द टेक ओवर ऑफ एनएच वर टू प्रोसीड. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. फिर पार्ट बी है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड स्टेप्स दैट एनपीपी शुड अंडरटेक प्रायर टू फाइनलाइजिंग द ऑफर. जब आप इनिशियल एक असेसमेंट करते हैं टारगेट की, तो बिफोर यू एक्चुअली फाइनलाइज द ऑफर यू कैरी आउट व्हाट इज कॉल्ड द ड्यू डिलिजेंस. और ड्यू डिलिजेंस का पर्पस वो पूछ रहे हैं क्या है और उसके स्टेप्स क्या होंगे, उनको डिस्कस करेंगे. ये 6 मार्क्स का डिस्कशन क्वेश्चन है, इसमें डिस्कशन ज़्यादा होंगी. फिर सी है डिटरमिन द टर्म्स ऑफ द शेयर एक्सचेंज अज्यूमिंग एनपीपी पेज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल प्राइस फॉर एनएच. यानी एनएच को सारा बेनिफिट अगर हम ट्रांसफर कर दें इस डील से, जितनी भी वैल्यू एडिशन होगी वो सारी एनएच के पास चली जाए, तो बताइए शेयर एक्सचेंज क्या होगा. Advise whether the existing shareholders of NH and NPP are likely to approve the offer and quantify any gains that respective shareholders would receive if NPP pays the maximum theoretical price. और अगर जो ऊपर आपने प्राइस यानी सारा बेनिफिट उनको दे देते हैं, तो बताइए गेन्स कहाँ कैसे होंगे और रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स के लिए क्या होगा और उनके लिए एक्सेप्टेबल ये चीज़ होगी या नहीं. ये उसी कैलकुलेशन से रिलेटेड फिर डिस्कशन और थोड़ा सा एनालिसिस है. तो ये पार्ट सी एंड डी तो हमारे टिपिकल एमएनए क्वेश्चन के पार्ट्स हैं. ए और बी भी जनरल डिस्कशन पार्ट्स हैं. हम पहले ए स्टार्ट करते हैं. सिनर्जी, वो पहले पूछ रहा है कि बताइए सिनर्जी की मीनिंग क्या है. वी ऑल नो सिनर्जी. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू आर्टिकुलेट इट प्रॉपर्ली. सिनर्जी किसे कहते हैं? व्हेन 2 or more entities, when they combine together, they combine their efforts and resources, जो रिजल्टेंट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, जो कंबाइंड एंटिटी की इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, वैल्यू एडिशन होती है, देन इफ दे वुड हैव परफॉर्म्ड अलोन, राइट, उस इन्हांसमेंट को, उस वैल्यू एडिशन को सिनर्जी कहते हैं. सो सिनर्जी, इफ यू डिफाइन, हाउ डू यू डिफाइन सिनर्जी? सिनर्जी को हम डिफाइन ऐसे करेंगे, when 2 or more entities combine their resources, efforts, whatever you say, the resultant increase in the productivity, performance, efficiency, value of the combined entity as compared to what to what the entities could achieve independently on a standalone basis. Yeah, on standalone basis. So it is
the resultant increase in the production, performance कहें, efficiency कहें, value कहें of the combined entity as compared to what the entities could achieve independently, right? Or in other words, जब one or two or more entities, when they combine, the resultant enhancement in the value of the combined entity versus their individual values on a standalone basis. खाली value basis पे भी हम इसे define कर सकते हैं कि when two or more entities they combine together, the resultant increase in the value of the combined entity as compared to their value in parts या on a standalone basis, तो वो जो enhancement है that's called synergy. अब ये synergy किस फॉर्म्स में कैसे आती है और फिर एनपीपी के लिए ये सिनर्जीज कैसे क्रिएट होंगी इफ इट टेक्स ओवर एनएच, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि सिनर्जीज हैं हमारी रेवेन्यू सिनर्जी होती हैं। हम 3 हिस्सों में अपनी सिनर्जीज को क्लासिफाई करते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए कॉस्ट सिनर्जीज और फिर हमारी फाइनेंशियल सिनर्जीज होती हैं। रेवेन्यू सिनर्जीज यहाँ पे ऐसे आएंगी कि जी आपकी सप्लाई चेन लिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी तो बाय ऑल मीन्स एनपीपी वुड बी एबल टू सेल मोर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बिकॉज द सप्लाई चेन लिमिटेशन ऑफ अमोनिया वुड बी रिड्यूस्ड, वुड रिजल्ट इन व्हाट, वुड रिजल्ट इन एनहांस सेल ऑफ इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिर ये रेवेन्यू सिनर्जी ऐसे भी आती है जब आप लेट से न्यू विद द कंबाइंड, जब आपके पास लेट सपोज करें ये हो जाएगी तो आप यू माइट थिंक ऑफ एंटरिंग इनटू अ न्यू सेल्स मार्केट जो कि आप पहले नहीं कर पा रहे थे। बाद औकात जब आप कंबाइंड एंटिटी बन जाते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी आपके फेवर में आ जाती है। यू आर एबल टू टैप मोर कस्टमर्स, बेटर कस्टमर्स, लार्जर कस्टमर्स, राइट? so you are able to bid in larger contracts। तो इस तरह की रेवेन्यू सिनर्जीज आती हैं, ये बात हम यहाँ लिख सकते हैं। कॉस्ट सिनर्जीज of course when the entities will combine, when you become a comparatively larger entity, it gives you lot of cost synergies. One, synergies in the form of your support functions हैं, you can combine those support functions. You don't need to have 2 sales forces, you don't need to have 2 HR functions, 2 finance functions, right? मार्केटिंग की शायद अब आपको जो एंटिटी है NH है, इसकी अपनी एक सेल्स टीम होगी, मार्केटिंग टीम होगी। विद कंबाइंड दिस शायद उसकी प्रॉब्ली आपको इंडिविजुअल टीम्स की ज़रूरत ही ना रहे। आपके जब आप एक मेजर अपनी ही जो है ना एक टारगेट एंटिटी के मेजर बायर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका फ़ायदा ये होगा कोई बैड डेट्स होते हैं, कुछ इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो भी आपकी कम हो जाएगी। फिर व्हेन यू बिकम अ कंबाइंड एंटिटी ऑफ कोर्स यू गेट when you go into the go towards the sourcing side, purchasing side, you are able to place larger orders, get bulk discounts। तो आपको वहाँ भी अपने supplier side से भी आपको benefit मिलता है। when you become a larger entity you get cost synergies in that sense as well। so there are lots of जो है आपकी cost synergies जो कि आपकी इससे आती हैं। बेटर सोर्सिंग जैसे हमने कहा, सपोर्ट फंक्शंस की कंसोलिडेशन हो गई। फिर जब आप खुद बायर बन जाएंगे या स्पेसिफिक केस में वी कैन राइट कि एनपीपी वुड बी द मेजर बायर ऑफ इट्स ओन टारगेट कंपनी NH, उससे आप अमोनिया ले रहे होंगे, अपनी सप्लाई चेन लिमिटेशंस ख़त्म होंगी आपकी, तो डेफिनेटली जो NH है उसकी भी तो एक कस्टमर मैनेजमेंट की, उसकी एक बैड डेट्स की, उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी उसकी कम हो जाएगी। बाद औकात इट ऑल्सो हेल्प्स आइडेंटिफाई कुछ एसेट सरप्लस हो जाते हैं, है ना। जब आपकी कंबाइंड एंटिटी हो गई तो यू प्रॉब्ली डोंट नीड 2 वेयर हाउसेज, यू डोंट नीड 2 सेल्स ऑफिसेज, तो कुछ एसेट्स क्या हो जाते हैं, सरप्लस हो जाते हैं। एंड देन यू आर एबल टू डिस्पोज ऑफ दोज एक्सेस एसेट्स एंड जनरेट कैश एंड देन डिप्लॉय इट मोर एफिशिएंटली, ये भी एक सिनर्जी आती है। फाइनेंशियल साइड से सिनर्जी आपको टैक्स प्लानिंग साइड पे आती है। यू आर इन अ बेटर पोजीशन जब 2 एंटिटीज मर्ज हो जाती हैं, वी डोंट हैव द रिक्विजिट डेटा और इन्फॉर्मेशन कि क्या पॉसिबल है या नहीं। लेकिन जनरली अगर आपकी कोई ऐसा यूनिट है जो कि लॉस कर रहा है कंबाइंड एंटिटी में मिलके, उसकी आप प्रॉपर लॉसेज या टैक्स डेप्रिसिएशन कोई एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, यू आर एबल टू डू सो विद द कंबाइंड एंटिटी, ये फ़ायदा हो जाता है। फिर आपको जो है फाइनेंशियल कैपिटल यानी फाइनेंस या कैपिटल की सोर्सिंग में भी फ़ायदा हो जाता है जब आप एज अ लार्जर एंटिटी जाते हैं टुवर्ड्स। अब एक NH एक छोटी एंटिटी है, ये शायद अगर बैंक से लोन ले रही हो या ये अपने लिए जो है वो कैपिटल रेज करना चाहे तो उसे शायद हायर कॉस्ट पे मिलेगा व्हेन एज पार्ट ऑफ
दी एनपीपी ग्रुप के साथ जब ये एंटिटी मर्ज हो जाएगी तो शायद आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट भी कम हो जाए. सो यू आर एबल टू सेव ऑन योर फाइनेंशियल कॉस्ट, यू आर एबल टू गेट सम टैक्स सिनर्जीज एज वेल. ये फिर फाइनेंशियल सिनर्जीज का हिस्सा बन जाती हैं. तो आप इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दें. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिनर्जी को डिफाइन कर दें. दिस इज गुड इनफ हियर. अच्छा, इसके बाद ऑपरेशनल सिनर्जीज भी आ जाती हैं. बाद वक़्त आपके पास ना ऑपरेशनल कुछ लिमिटेशंस, हैसल्स वो भी कम हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से हैविंग बेटर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल. तो वो भी एक चीज़ें हैं, लेकिन गिवन 4 मार्क्स आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ. फिर आइए पार्ट बी. ये भी प्योर डिस्कशन क्वेश्चन है. एक्सप्लेन करने को कहा गया है द पर्पस ऑफ ड्यू डिलिजेंस. ड्यू डिलिजेंस का पर्पस क्या होता है और द स्टेप्स दैट एनपीपी शुड अंडरटेक प्रायर टू फाइनलाइजिंग द ऑफर विद एनएच. तो अब आते हैं ड्यू डिलिजेंस पार्ट बी पे. यहाँ तक आप पहुँच गए. आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस इनफ. अब आए ड्यू डिलिजेंस. अच्छा, ड्यू डिलिजेंस क्या है? ड्यू डिलिजेंस is a process of reviewing. अगर हम इसको अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करें तो हम यूँ लिखेंगे इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एज वेल, यानी ऑपरेशनल डेटा इंफॉर्मेशन of a company before deciding about investing या acquiring it. राइट अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में डिफाइन करूं कि आप एक जो टारगेट एंटिटी, जो कि पोटेंशियल एंटिटी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिसे आप एक्वायर करना चाह रहे हैं, जैसे एज पार्ट ऑफ M&A कहें, उस डील का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, तो उसके फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन का रिव्यू है ये डिटेल्ड. इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग इन डिटेल, है ना, द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल. अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? व्हाट डज इट हेल्प? इट हेल्प्स यू making informed, intelligent investment decision. It reduces it helps in reducing surprises later. It helps you in also, यूं कहें surprises से कैसे, it helps you in identifying and assessing potential risks. And therefore it helps in reducing surprises later and helps in improving chances of success. यानी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया ये एक बेनिफिशियल डिसीजन हो, इसकी सक्सेस पोस्ट इन्वेस्टमेंट उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. व्हेन यू आर मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड इंटेलिजेंट डिसीजन, इट हेल्प्स you in identifying essential potential risk. It also helps you in, of course, in understanding the business, its financial information, जिसकी बेसिस पे ये होता है. जब आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो ड्यू डिलिजेंस के 3-4 ब्रॉड आप कहें कि सब पार्ट्स हैं. एक फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होती है जो मेन ड्यू डिलिजेंस है. यही चीज़ हम लिखेंगे कि एनपीपी को भी करनी चाहिए. उसके स्टेप्स क्या हैं कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होगी, एक ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस होती है, एक लीगल ड्यू डिलिजेंस होती है, और एक कुछ कंपनी इस पे भी जाती हैं एचआर ड्यू डिलिजेंस भी करती हैं. अगर एचआर एलिमेंट स्पेशली सर्विस साइड पे या किसी
वैसे तो हर इंडस्ट्री के लिए HR इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट इट्स जस्ट ऐसी कोई कंपनी जिसमें HR का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्रीज़ में तो ये बहुत है, उसकी ड्यू डिलिजेंस होती है, राइट। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं जो NPP को भी करना है बिफोर, बिकॉज ड्यू डिलिजेंस मीन्स यू आर रिव्यूइंग वेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो जब आप एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर लेते हैं कि हाँ दिस इज़ द कंपनी बेस्ड ऑन द पब्लिश्ड डेटा, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और उसके बाद आपने कहा कि हाँ बेस्ड ऑन माय स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव दिस इज़ द कंपनी वी वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन, और आप इनिशियल डिस्कशंस के बाद जब आप कहते हैं कि हाँ दोनों साइड से इंटरेस्ट है इन एक्सप्लोरिंग द डील, तो फिर आप एक NDA साइन करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं एक सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन के बाद, ताकि इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सारी चीज़ें, फिर यू गो इनटू व्हाट इज़ कॉल्ड द प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज। उसके लिए आप एक्सटर्नल फर्म्स भी हायर करते हैं, खुद भी कर सकते हैं, बट जनरली अकाउंटिंग फर्म्स हेल्प यू विद फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, सम टेक्निकल फर्म्स रिलेटेड टू कंसल्टेंट्स हेल्प यू विद दी ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, लीगल फर्म्स हैं जो आपको लीगल ड्यू डिलिजेंस में हेल्प करती हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा कैसे हैं। जरा HR फर्म्स एज वेल जो आपको HR ड्यू डिलिजेंस में हेल्प करती हैं। जनरली आप चूँकि अगर सेम इंडस्ट्री है या अलाइड इंडस्ट्री है तो HR ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस आप अपनी टीम से करवा लेते हैं। फाइनेंशियल लीगल के लिए आप एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हायर करते हैं। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में क्या होगा, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में ये सारी बातें हमने वैसे पहले भी डिस्कस की हुई हैं। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में जो यहाँ पे आपने लिखना है, आई मीन वी ऑल नो दिस, मैं इसको अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम आर्टिकुलेट करें राइटली फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, क्वेश्चन को आंसर करते हुए। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते हैं, और ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली रिव्यू करते हैं बल्कि उसके ब्रेकअप्स लेते हैं, क्योंकि पब्लिश्ड एंटिटी है, लिस्टेड एंटिटी है, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होंगी अवेलेबल, उनकी और डिटेल्स कि एसेट्स की और डिटेल्स क्या हैं, उनकी लाइफ्स क्या हैं, ठीक है। कंटिंजेंसी से मुतालिक इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं, टैक्स की कंटिंजेंसीज, आपके केसेस की कंटिंजेंसीज। फिर आप क्या लेते हैं, आप मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड फ्यूचर फोरकास्ट लेते हैं, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक तो एक्सटर्नल जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करते हुए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो रिव्यू करते ही हैं, फिर साथ साथ आप मैनेजमेंट अकाउंट्स का भी रिव्यू करते हैं। सो NPP ने क्या करना है, NPP ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करना है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में, साथ ही मैनेजमेंट अकाउंट्स और फ्यूचर फोरकास्ट लेने हैं। उस मैनेजमेंट अकाउंट से आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस रिव्यू मिलेगा कि रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या हैं। फिर जो मैनेजमेंट अकाउंट्स कह लें उनमें और डिटेल्ड होती हैं, थोड़ी डिटेल्ड और इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने क्या ब्रेकअप्स होते हैं, कॉस्टिंग्स होती हैं और प्रोडक्ट्स की, तो जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतनी डिटेल में नहीं होती। वो आपको मैनेजमेंट अकाउंट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट्स कितने हैं, फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट्स कितने हैं, कॉस्ट के ड्राइवर्स क्या हैं, रेवेन्यू के ड्राइवर्स क्या हैं। फिर जब आप उसके बाद फ्यूचर फोरकास्ट लेते हैं और प्रोडिक्शंस लेते हैं, प्रोडिक्शन का मतलब जो फोरकास्टेड जो आपके 3 साल 5 साल 7 साल का उन्होंने अपने फाइनेंशियल फोरकास्ट बनाए होते हैं P&L कैश फ्लो के, इट हेल्प्स यू जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द बिजनेस ऑपरेटिंग इन असेसिंग द अजम्पशंस इन दोज फोरकास्ट। अब हिस्टोरिकली ग्रोथ रही है आपकी 3% या 5% और आप कह रहे हैं कि मैं अब ग्रो करूँगा 15% से, तो फिर आप उनसे पूछेंगे कि जी आपने ये 15% की ग्रोथ किस बेसिस पे ली है ना। व्हाट आर दी, यू विल स्ट्रेस टेस्ट दोज अजम्पशंस इन अ बेटर वे कि जी व्हाट आर, जब कॉस्ट आपकी पहले इंक्रीज होती रही है या कॉस्ट का इतना कंपोनेंट फिक्स्ड है, इतना वेरिएबल है, तो अचानक से ये कॉस्ट आपकी कैसे कम हो जाएगी। बिकॉज टारगेट एंटिटी जो सेलर है वो कोशिश करेगा कि बहुत रोज़ी से रोज़ी फोरकास्ट बना के आपको दे। एज बायर आपकी ख्वाहिश ये होगी कि आप सबसे इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेस टेस्ट करें, क्योंकि उन्हीं फोरकास्ट की बेसिस पे वैल्यूएशन होनी है बिजनेस की और डील होनी है। सो व्हाट यू विल डू इज़ यू वुड लाइक टू हैव मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड रियलिस्टिक फोरकास्ट, ऑप्टिमिस्टिक से ज़्यादा रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक फोरकास्ट, ठीक है, विच इज़ जो कि एक्चुअली आप रियलाइज़ कर सकें। तो फिर आप उन अजम्पशंस को जो फोरकास्ट जिनकी बेसिस पे बनी हुई है, ग्रोथ की, कॉस्ट की, प्रोडक्ट लॉन्च की, कैपेक्स की, उन अजम्पशंस को आप स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये पार्ट हो जाता है आपका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का। फिर इसी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस से लिंक्ड होती है लीगल ड्यू डिलिजेंस की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आप ज़रूर देखते हैं, एसेट साइड भी जो ये P&L एंड कैश फ्लो साइड के साथ साथ, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि जी एसेट साइड में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, नेचुरली बैलेंस शीट साइड, लायबिलिटी साइड आप अच्छे तरीके से देखते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं कंटिंजेंसीज,
कंटिंजेंसीज में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो ये है कि कौन सी ऐसी लायबिलिटीज़ हैं जो कि पोटेंशियल लायबिलिटीज़ बन सकती हैं। कंपनी तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के नोट पर लिखती है, इसीलिए कंटिंजेंट है कि वो समझते हैं कि जी कोई एक लीगल केस है तो जी ये लायबिलिटी पोटेंशियल नहीं होगी, इसका फैसला हमारे हक में होना है, हम इसीलिए अगर हम समझें कि हमारे अगेंस्ट होगा तो हम इसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लें। वी आर एक्सपेक्टिंग फेवरेबल आउटकम। आप देखते हैं कि उसका रिस्क कितना है और अनफेवरेबल आउटकम कितना आ सकता है। टैक्स के केसेस होते हैं और केसेस होते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ, आपके बहुत सारी इशूज़ या डिसीजंस होते हैं। फिर कोई आपकी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं कस्टमर्स के साथ, कोई वारंटीज़ के, क्लेम्स के, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जो डिफरेंट डिस्प्यूट्स होते हैं, सब कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ में डिस्क्लोज होते हैं। तो यू कैरी आउट अ वेरी डिटेल्ड रिव्यू ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ स्पेशली इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में आप बिजनेस के ऑपरेशंस, कोई प्लांट्स हैं तो उन प्लांट्स की टेक्निकल साइड, उनकी कंडीशन क्या है, उसकी सेफ्टी साइड क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, क्या लाइफ है ना, प्लांट के डिफरेंट कंपोनेंट्स की सिचुएशन क्या है, ये सारी ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में चीज़ें कवर करते हैं। लीगल में जैसे मैंने कहा कि आप देखते हैं पोटेंशियल केसेस कौन से हैं, टैक्स के कौन से आपके पॉसिबल केसेस हैं जो है ना, जो कि पोटेंशियल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। कोई ऐसे लीगल डिस्प्यूट्स हैं, कोर्ट केसेस हैं, उनको आप डिटेल रिव्यू करवाते हैं थर्ड पार्टी से और असेस करते हैं कि इस केस से क्या पोटेंशियल लायबिलिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी में ट्रांसलेट हो सकती है, रेपुटेशनल रिस्क उससे रिलेटेड कितने हैं। फिर आप कोई कस्टमर्स के डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई वारंटी के क्लेम्स होते हैं, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इंश्योरेंस के कोई डिस्प्यूट है, जो सारे डिस्प्यूट्स और चीज़ें जो हैं, फिर आप उनसे पूरी लिस्ट ऑफ लीगल केसेस एंड पोटेंशियल लीगल केसेस की, वारंटीज़ की, क्लेम्स की आप डिटेल्स देते हैं, उसको असेस करते हैं। यहाँ HR ड्यू डिलिजेंस में आप ये देखते हैं कि जी कंपनी का जो HR है उसकी कैपेसिटी कितनी है, एडिक्वेसी कितनी है, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें आप असेस करते हैं। कितना मोटिवेटेड HR है, पहले तो ये देखते हैं आप एडिक्वेसी के जो कंपनी के पास HR है कम या ज़्यादा है, फिर जो HR मौजूद है उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, कितने अरसे से हैं, ठीक है ना, क्या ओवरऑल एट्रिशन रेट है, टैलेंट की पोजीशन क्या है, उनके आप बायोडेटाज दे देते हैं, उनके CVs देते हैं, असेस करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, है ना। और इस मर्जर वगैरह के बाद पोटेंशियली कितने लोगों को आप होल्ड करेंगे, कितनों को नहीं करेंगे, आपकी अपनी HR प्लानिंग क्या होगी, ऑर्गेनोग्राम आपके हिसाब से रिवाइज एंटिटी का क्या होगा, कितने फंक्शंस ऐसे हैं जो आप समझते हैं मर्ज हो जाएंगे, जिनके HR को आपको फिर सिवरेंस देनी पड़ेगी, उस सिवरेंस की एक कॉस्ट होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आप HR फिर ड्यू डिलिजेंस में असेस करते हैं। तो ये मैंने बहुत डिटेल में बात कर ली, आप छोटी छोटी बातें भी इसको ब्रीफली अगर डिस्कस कर लें फाइनेंशियल में, ऑपरेशनल में, लीगल में, HR में, तो 6 मार्क्स के लिए दिस वुड बी इनफ। ड्यू डिलिजेंस आपने स्पेसिफाई कर दिया, उसके बेनिफिट्स स्पेसिफाई कर दिए, इन सारी बातों का अल्टीमेट बेनिफिट क्या होगा, यू विल बी एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यू विल बी एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, राइट वैल्यूएशन करने के काबिल होंगे आप। जो पोटेंशियल रिस्क हैं, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग जब अच्छी हो जाएगी तो आपको रिस्क असेस करने में आसानी हो जाएगी कि इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से रिस्क हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपके बाद में जो सरप्राइजेज आते हैं, बाद में जो आपके चांसेस ऑफ फेलियर वो कम हो जाते हैं, चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं पोस्ट एक्विजिशन और पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये 6 मार्क्स के लिए आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी कैन कवर। अच्छा जी, फिर कम जो पार्ट C है जो कि कैलकुलेशन पार्ट है, यहाँ तक आप पहुँचे, कोई चीज़ नोटिंग्स करनी है, कॉपी करना है, कॉपी करें। फिर हम पार्ट C पे आते हैं। अच्छा जी, अब पार्ट C एंड पार्ट D दोनों को हम अटेम्प्ट करें मिलके। क्या हम प्राइस ऑफर करेंगे, फिर उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सारी बातें एक साथ हम करते हैं। तो ड्यू डिलिजेंस के बाद अब हम आते हैं पार्ट C पे। डिटर्मिन द टर्म्स ऑफ द शेयर एक्सचेंज। तो C और D हम एक साथ डिस्कस भी करते रहेंगे और उसका साथ एनालिसिस भी करेंगे। एक NPP है हमारे पास, ये एक्वायरर है, और हमारे पास NH है, ये हमारे पास टारगेट एंटिटी है, राइट। इसका हमें सारा बेसिक डेटा शुरू का गिवन है, हमें इनकी
EPS भी बताई गई है, नंबर ऑफ शेयर्स बताए गए हैं। EPS पे अगर हम आएँ तो ₹460 यहाँ है ₹620। नंबर ऑफ शेयर्स पे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास 22 मिलियन और यहाँ है 5 मिलियन। तो ये अर्निंग्स पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी। टोटल अर्निंग्स को फिर हम P से मल्टीप्लाई करें तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल अर्निंग्स हमारे पास आ गई 460 को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या फिगर बन जाती है? 460 इंटू 22 ये बन गई 10, 120 मिलियन रुपीस। ये बन जाएगा 620 इंटू 5 रुपीज़ 3100 मिलियन। अब हम इसको अपने पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लें। ये अर्निंग्स यहाँ हो गई, ये अर्निंग्स यहाँ हो गई। इसका जो पी रेशियो है वो 10 है, एनपीपी का पी रेशियो ज़्यादा है, एनएच का पी रेशियो 5 है। मल्टीप्लाई करें तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो क्या बन जाएगी? 101,200 मिलियन। और यहाँ क्या बनेगी? 1500 3100 इंटू 5 तो ये बन गई 15,500। इन दोनों की प्री मर्जर वैल्यूज़ को अगर हम कंबाइन करें, ये टोटल मार्केट वैल्यू प्री मर्जर या प्री एक्विजिशंस, प्री M&A प्लस 101,200 ये बन गया 116,700। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको अलॉन्ग विद दीज अर्निंग्स अब सिनर्जी होगी 1500 मिलियन की। तो रिवाइज्ड अगर हम देखें तो हमारी रिवाइज्ड अर्निंग्स क्या हो जाएंगी? यहाँ कर लेता हूँ मैं, कंबाइंड एंटिटी जब बनेगी, जब कंबाइंड एंटिटी बनेगी तो कंबाइंड एंटिटी में हम ये कह रहे हैं कि जो अर्निंग्स होंगी वो एनपीपी की अर्निंग्स भी आएंगी 10, 120, एनएच की अर्निंग्स भी आएंगी 3,100 प्लस सिनर्जी का इम्पैक्ट आएगा, वो कितना आएगा? सिनर्जीज का 1500 का। तो हमारे पास रिवाइज्ड टोटल अर्निंग्स क्या बन जाएंगी? हमारे पास टोटल अर्निंग्स बन जाएंगी 3,100 प्लस 10,120 प्लस 1,500, दिस बिकम्स 14,720। ये अर्निंग्स ऑफ कंबाइंड एंटिटी हो गई। जब एनएच और एनपीपी मर्ज हो गए तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंबाइंड एंटिटी वुड बी वैल्यूड एट द पीई ऑफ द एनपीपी। एनपीपी के शेयर होल्डर्स बोर्ड ये समझते हैं कि इस पे आपकी कंबाइंड मार्केट, यानी इसे बूट स्ट्रैपिंग इफेक्ट कहें, कि ये पहले 10 पे वैल्यूड है, ये तो 10 पे वैल्यू होगा ही होगा। ये जो 5 पे वैल्यूड था इसे भी आप समझें 10 पे वैल्यू होगा, और ये भी 10 पे, तो पूरी कंबाइंड एंटिटी 10 पे वैल्यू हो जाएगी और आपकी वैल्यू बन जाएगी 147,200 रुपीज़ इन मिलियन। ये बन जाएगी वैल्यू, राइट। अब हम कह रहे हैं कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम प्राइस क्या ऑफर करें। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम प्राइस। थ्योरेटिकल मैक्सिमम ये है कि इनकी वैल्यू कम ना हो, बाकी सारा इम्पैक्ट किसके पास चला जाए? वो टारगेट के पास चला जाए। तो इसमें से हम लेस कर दें अगर वैल्यू ऑफ एनपीपी प्री मर्जर, तो आप कहेंगे ये आप उसको ऑफर करेंगे 101,200। तो ये क्या बन जाएंगे? 101,200 माइनस कर दें, 101,200 माइनस 147,200, 46,000 बन जाएगी वैल्यू ऑफ एनएच को आप ऑफर करेंगे। यानी यूं कहिए कि आप
147,200 की रिवाइज्ड वैल्यू हो गई। एनपीपी के शेयर होल्डर्स को वही मिला 101,200। जो बैलेंस आ रहा है वो किसे मिल गया, वो एनएच के शेयर होल्डर्स के पास चला गया 46,000। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है कितने, इनके नंबर ऑफ शेयर्स हमें गिवन है, वो हैं 22 मिलियन, जिसकी बेसिस पे पर शेयर वैल्यू हमें पता है कितनी है। इनकी पर शेयर वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये जो 101,200 है, इनकी पर शेयर की वैल्यू कितनी है, ये 100 नंबर ऑफ शेयर्स, इसके तो वही 22 मिलियन, इससे डिवाइड कर दें तो पर शेयर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 101,200 डिवाइड बाय 22, so it translates into 4,600 रुपी पर शेयर, राइट। अब यही शेयर की वैल्यू यहाँ होगी 4,600 पर शेयर, क्योंकि शेयर तो आप एनएचई का दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी एनपीपी का शेयर दे रहे हैं, तो एनपीपी की जो शेयर की वैल्यू है वही एनपीपी का शेयर इनको भी मिलेगा। अगर 46,000 यानी 46 मिलियन बिलियन की 46,000 मिलियन की वैल्यू इधर आ रही है, तो ऑटोमेटिकली जब आप इसे 4,600 से डिवाइड करें, दिस वुड बिकम 10 मिलियन शेयर्स, राइट। तो इफेक्टिवली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट यू वुड बी ऑफरिंग ये हमने कैसे निकाला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 101,200 की वैल्यू इनकी वही है, इनके नंबर ऑफ शेयर्स वही हैं, तो जो पर शेयर वैल्यू है ये वही है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वही वैल्यू पर शेयर पोस्ट आपकी। इसका मतलब ये है, अगर ये वैल्यू इनके 22 मिलियन शेयर की रहनी है, तो जो आपके पास पहले वैल्यू पर शेयर थी वही वैल्यू पर शेयर रहनी है, 101,200 डिवाइड बाय 22 मिलियन 4,600, तो ये 4,600 की पर शेयर की वैल्यू हो गई रुपीज़ पर शेयर, राइट। जो आज है वही वैल्यू रहेगी, यही शेयर की वैल्यू, यही शेयर इनको मिल रहा है एनपीपी का एनएच के शेयर होल्डर्स को, इनके भी पर शेयर की वैल्यू 4,600 है। 4,600 को जब इससे हम 46,000 को 4,600 से डिवाइड कर दें तो 10 मिलियन शेयर्स बन जाएंगे। इसका मतलब है जो आपकी ऑफर होगी वो ऑफर होगी 10 मिलियन शेयर्स ऑफ एनपीपी फॉर 5 मिलियन शेयर्स ऑफ एनएच, यानी 2 एनपीपी फॉर 1 एनएच शेयर, 2 एनपीपी फॉर 1 एनएच शेयर, ये बेसिकली आप ऑफर कर रहे हैं, ऐसा ही है जी। तो वी आर ऑफरिंग 2 एनपीपी फॉर 1 NH, दिस इज़ दी ऑफर, एंड टोटल शेयर्स जो आप ऑफर कर रहे हैं 5 मिलियन के अगेंस्ट 10 मिलियन, यही पार्ट सी है आपका कि डिटर्मिन द टर्म्स ऑफ द शेयर एक्सचेंज अज्यूमिंग दैट एनपीपी पेज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल प्राइस, सो द टर्म्स ऑफ द शेयर एक्सचेंज वुड बी 2 एनपीपी फॉर 1 NH, राइट। अब आ जाता है जहाँ तक आप पहुँचे फिर पार्ट बी, विच इज़ अबाउट कि जो हम ऑफ़र कर रहे हैं ये एक्सेप्टेबल भी होगी या नहीं होगी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी के चांसेस क्या हैं और कितना किसके लिए ये बेनिफिशियल है। यहाँ तक आप पहुँचें तो फिर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा आप अगर इसका एनालिसिस करें तो पोस्ट एक्विजिशन जो कि कंबाइंड एंटिटी की वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 147,200, राइट। और जो प्री एक्विजिशन जो सेपरेट वैल्यू है, उन दोनों को सम करें तो वो बनती हैं 116,700। तो जो मर्जर ने इसने डील का बेनिफिट कितना है टोटल, अगर हम देखें डील बेनिफिट जो पोस्ट पोटेंशियल, अगर इन अज्यूमिंग के मार्केट वैल्यूज द कंबाइंड एंटिटी एट द पीई ऑफ एनपीपी, ये सब अज्यूम करते हुए जो मर्जर का इस पूरी डील का जो बेनिफिट है उसे क्वांटिफाई करें तो वो बनता है 3,500, राइट। 30,500।
इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है? इस प्रपोज टर्म के हिसाब से हम कह रहे हैं कि जो एनपीपी है उसको 101 200, ये पहले भी यही था, पोस्ट भी और प्री भी, तो इसको तो कोई बेनिफिट ना मिले। इसको पोस्ट मिल जाए, हम कह रहे हैं 46,000, और इसकी प्री जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है 15,500, 15,500। ऑफ कोर्स ऑल फिगर्स आर रुपीज इन मिलियंस। तो जो सारा बेनिफिट है इफेक्टिवली 3500 का, ये पूरा गेन हम कह रहे हैं इसे हो। दिस गेन एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू व्हाट? 3500 डिवाइडेड बाय 15,500 करूँ मैं तो दिस इज लाइक दिस गेन, दिस इज 197% प्रीमियम आप दे रहे हैं ओवर इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, राइट। आप 3 गुना तकरीबन आप उसको वैल्यू दे रहे हैं 15 के अगेंस्ट 46,000, तो तकरीबन 15,500 के अगेंस्ट 200% प्रीमियम है, और 3 टाइम्स आप एक तरीके से ऑफ द एग्जिस्टिंग वैल्यू दे रहे हैं, तो आप 200%, 197 या 200% गेन प्रीमियम दे रहे हैं, which is too much, right? तो ऑफ कोर्स इनके लिए तो ये 100% एक्सेप्टेबल होगा, मोर देन एक्सेप्टेबल है ये, इनकी तो चांदी है, राइट। इनके लिए जो है ना, इसमें नथिंग इन दिस एक्सेप्ट कि आपके सिर्फ सप्लाई चेन के इश्यूज रिजॉल्व होंगे, नथिंग सिग्निफिकेंट। तो ऑफ कोर्स इनके शेयर होल्डर्स, जो एक्वायरर है उसके शेयर होल्डर्स के लिए डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इनके लिए ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा, मोर देन एक्सेप्टेबल, कि उनको 3 टाइम्स आज की जो वैल्यू है उसके पैसे मिल रहे हैं, 200% का, 197% का उनको तकरीबन गेन मिल रहा है, तो उनके लिए तो मोर देन एक्सेप्टेबल है, लेकिन इन कंपनीज के शेयर होल्डर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम इसका अगर थोड़ा और डीप डाइव करें कि जो इतना सारा गेन आ रहा है, मर्जर ने तो अपना काम, या डील की बात, जो सिनर्जी मिलनी थी वो सिनर्जी, वो वैल्यू एडिशन तो मिल रही है, लेकिन उस वैल्यू एडिशन का अगर सारा का सारा उसकी तकसीम यहाँ मुनसिफाना नहीं लग रही, उसका सारा का सारा बेनिफिट अगर आप टारगेट को दे देंगे तो अक्वायरर के लिए मुश्किल होगा। और अगर मार्केट ने उस पीई पे कंबाइंड एंटिटी को वैल्यू नहीं किया है और उससे कम पे वैल्यू कर लिया, क्योंकि आज जो NH है इट इज़ वैल्यूड एट 5, हम ये कह रहे हैं कि NH को लेके कंबाइंड एंटिटी को मार्केट सेम पीई पे करेगी। अगर मार्केट ने ऐसा नहीं किया तो और वैल्यू आपके शेयर की कम हो गई तो आपको तो नुकसान हो जाएगा फिर, राइट। तो अब आइए, अगर हम इस 3500 का थोड़ा सा एनालिसिस करें कि जो डील का जो बेनिफिट है इसका अगर हम ब्रेकअप करें, तो इसके ब्रेकअप में क्या है? इसके ब्रेकअप में देखिए एनपीपी है, इसकी अर्निंग्स थी कितनी? इसकी अर्निंग्स थी, जो टोटल अर्निंग्स हमने निकाली थी 10 460 into 20 million 10 120 जो अर्निंग्स थी 10 120। पीई इंक्रीज यहाँ तो कुछ भी नहीं है, नील है ना, क्योंकि ये पहले भी 10 पे वैल्यूड थी, अब भी 10 पे वैल्यूड है, तो इसकी वजह से तो कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। NH जो है उसकी अर्निंग्स रुपीज इन मिलियन में है 3100। अब ये जो 3100 है, यहाँ बूट स्ट्रैपिंग इफेक्ट आया, यहाँ 10 - 5 5 की वैल्यू एडिशन हो गई, इंटू 5 करें आप तो ये फिगर बन जाती है 15,500। तो ये डील बेनिफिट कहें या मर्जर सिनर गेन कहें, वॉट एवर यू कॉल इट, M&A गेन वैल्यू में 15,500 ऐसे आया। फिर जो सिनर्जी है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, वो पूरी की पूरी 10 पे वैल्यू हो गई, तो 15,000 का इसका इम्पैक्ट आ गया, तो ये बन जाता है 3500। तो यूं 3500 का डील का बेनिफिट हुआ, यूं कह सकते हैं आप ये जेन्युइन सिनर्जी का इम्पैक्ट है और ये बूट स्ट्रैपिंग इम्पैक्ट है जो कि आया है। ऑफ कोर्स एक्वायरर के शेयर होल्डर्स को इस फॉर्म में, इस शेयर एक्सचेंज रेशो 10 वर्सेस फॉर, यानी 10 मिलियन शेयर्स आप दे रहे हैं, और अगर आप 10 मिलियन शेयर्स दे भी रहे हैं, 10 मिलियन शेयर्स आप दे रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर, यानी अपने जो टारगेट को NH को दे रहे हैं,
और आपके पास एनपीपी के पास कितने शेयर्स हैं, 22 मिलियन ही रहेंगे, तो आप एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल भी अपना दे रहे हैं। ये भी आप देखें इस डील का ये एक कॉन्सिक्वेंस है। टोटल शेयर्स फिर आपके हो जाएंगे 32 मिलियन। तो परसेंटेज ओनरशिप अब 22 डिवाइड बाय 32 आपके पास रह जाएगी 68.75 और इनके पास होगी 10 डिवाइड बाय 32 31.25। तो आप अपनी कंपनी की 31% शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, कंट्रोल डाइल्यूट भी कर रहे होंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग टर्म्स पे जाएं, आपको बेनिफिट भी कोई नहीं मिल रहा और आप अपना कंट्रोल भी डाइल्यूट कर रहे हैं, तो नेचुरली एनपीपी के शेयर होल्डर्स के लिए तो ये डील नहीं है किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल। तो कंपनी को चाहिए कि वो टर्म्स जो सोच रहे हैं उसको रिव्यू करें और एक रिवाइज्ड टर्म्स ऑफर करें। रिवाइज्ड टर्म्स में आप ये कह सकते हैं कि जी टू द एक्सटेंट दैट यू आर एबल टू इनहांस द वैल्यू ऑफ एनएच, व्हाई वुड मार्केट रीवैल्यू एनएच from a PE of 5, उसकी earnings को from a PE 5 to 10 is because of NPB, क्योंकि NPB is a larger entity, must be governed well. Market definitely has more confidence on NPB, which is reflected in the form of a higher PE ratio as compared to NH. तो ये benefit तो आप अगर NH को दे दें, it makes sense कि जी हमारी वजह से जो इस earnings का बूट स्ट्रैपिंग इम्पैक्ट है ये दे दें, यानी 15,500 का लेट से आप उनको एक प्रीमियम विच इज़ ऑल्सो 100% प्रीमियम, तकरीबन नहीं एग्जैक्टली 100% प्रीमियम इन देयर वैल्यू, ये आप उन्हें दे दें। जो सिनर्जी का इम्पैक्ट है वो आप अपने पास रखें। सो द वे यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस इज ऑन अ फेयर बेसिस इज के 15,500 की वैल्यू यहाँ आप गेन ट्रांसफ़र कर दें, यानी इनको आप ऑफर करें 31,000 की वैल्यू की, उसी की बेसिस पे शेयर एक्सचेंज रेशो, और बाकी बेनिफिट आप अपने पास रखें। दिस विल प्रॉब्ली बी मोर जुडिशियस एंड कंपैरेटिवली a win-win situation for shareholders of both entities। तो ये बात आप जो है इस पे नोट कर सकते हैं। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ये आप सिनर्जी बता दें, गेन की डिस्ट्रीब्यूशन बता दें, ये गेन बना कैसे है, शेयर होल्डर डाइल्यूशन, और फिर ये सारी बात करके मेरा ख्याल है इस 7 मार्क्स के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यही कहा गया था कि एडवाइस करें whether existing shareholders are likely to approve the offer and quantify the gains that the respective shareholders would receive if NPP pays the maximum. If NPP pays this maximum price, तो ये सिचुएशन होगी, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट करेंगे, उसके नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और ये उसकी रीजनिंग ये है। इतनी बातें अगर हम कर लें इसमें तो 7 मार्क्स बड़े आराम से आप गेन कर सकते हैं। So this concludes our discussion of question number 2। यहाँ तक आप पहुँचें, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि फॉरेक्स से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी जैसे आपने देखा कि इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है, मोर डिस्कशन एनालिसिस। क्वेश्चन 3 जो है ना वो फॉरेक्स से रिलेटेड है, उसमें हमारी फॉरेक्स की हेजिंग की कैलकुलेशंस भी हैं और डिस्कशन भी है, दोनों ही कंपोनेंट हैं, वो हम करते हैं। आप यहाँ तक पहुँचें, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3।